Is my document visible? Yes, ma'am. Okay, so in the last class, we discussed section 35, that is expenditure on scientific research. And there, I think we were a little bit confused about one statement in which I have specifically told you that I'll be sharing one question, but it's not there in any of your books and on the internet also. But I have made the statement very simple, so you can just understand from the statement that in case if the assessee has acquired any asset for the purpose of conducting any type of scientific research for for his business or profession, and in case is that if that particular asset was not used for, you know it, it was not used during the entire process, then there will be capital gains and also the income, PGBP income, which the assessee has to charge. So in that case, any kind of difference between the sales price and the cost of acquisition, you know about capital, gains हम कैसे calculate करते हैं, there is a set format. So जो भी sales consideration minus cost of acquisition होगा, जो difference होगा, that will be charged under the capital gains. ठीक है. और जो पीजीबीपी इनकम वो कैसे निकलेगी, सेल्स प्राइस और जो डिडक्शन आपको पता है ना फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22, 100% डिडक्शन इज अलाउड इन केस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज डन ऑन साइंटिफिक रिसर्च. 100% डिडक्शन है, मतलब जितना खर्चा लग रहा है, आप असेट खरीद रहे हो रिसर्च के लिए, तो वो जितना खरीद रहे हो सारा का सारा आपके पीजीबीपी में एज अ डिडक्शन अलाउड होगा, जिससे आपकी इनकम कम हो जाएगी. 100% अलाउड है. सो इन केस वो बिक जाता है असेट, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, तो उस केस में जब भी वो बिकेगा, जिस प्रीवियस ईयर में वो बिकेगा, उस साल आपको दो इनकम्स निकालनी पड़ेगी, कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी. पीजीबीपी कैसे निकलेगी, सेल्स प्राइस और जो डिडक्शन मिली है विच एवर इज लेस, जो भी लेस अमाउंट होगा दैट विल बी गो इनटू द क्रेडिट साइड. ओके, इट विल बी एडेड दैट द इनकम विच शुड बी क्रेडिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. ठीक है, वो जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल एड दैट पर्टिकुलर इनकम. और कैपिटल गेन्स क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. Initially what happened, I did not write this sales price, only surplus thing was written, that is why it created a confusion. But I have now simplified the statements for you guys, so you can refer the statement. Although no question will come from this point, because there are no questions explaining this particular aspect in your book. So I'm not expecting that any kind of question will come from this particular part. Maximum what will come, that there will be some expenditure which is incurred on scientific research. So you just must be aware that okay, 100% deduction is allowed. ठीक है, इससे पहले क्या होता था, 150% डिडक्शन थी, मतलब 100 रुपए का खर्चा लिखता था तो 150 अलाउड था डिडक्शन में. अब इट इज 100%. ठीक है, it is 100% across all the categories, so you don't have even have to face any problems in terms of assessing the categories. If it is for scientific research means 100% देना है, इन सब categorization की भी आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कर रही है, कोई कॉलेज कर रहा है, या कोई एसोसिएशन कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन कर रही है, कोई भी इंस्टीट्यूट कर रहा है, अब वो कुछ नहीं है, इतनी अगर हो रहा है तो 100% मिलेगा. Next is section 36, and it is specifically discussing all the expenses which are allowed to be debited in P&L account when we are calculating PGBP income. So it is a very comprehensive list which basically explains all the nature of expenses which are allowed to be debited. So अगर ऐसा कोई भी expense छूट जाता है तो हमें वो मतलब subtract करना पड़ेगा हमारी PGBP income से, क्योंकि हमारी income reduce होनी चाहिए. ये सारे expenses allowed है as per Income Tax Act. ठीक है, सो कौन कौन से वो एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस. ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 36 सबसेक्शन 1. दिस इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द फॉलोइंग. ठीक है, सो इंश्योरेंस जब हम किसी चीज का लेते हैं उससे रिगार्डिंग जब प्रीमियम जो हम पे करते हैं वो अलाउड है एज अ डिडक्शन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, फर्स्ट इज स्टॉक. सो फॉर एनी बिजनेस, ठीक है, फॉर होम द स्टॉक इन ट्रेड इज ऑफ हाई वैल्यू and there is a huge risk which is related to the stock. ठीक है, किसी का काम ही यही है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स हो गए, उनका जो स्टॉक होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, रिस्क इन टर्म्स ऑफ फायर, थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी.
जो भी है रिस्क इज वेरी हाई, सो उस केस में इन केस द बिजनेसमैन इज इंश्योरिंग हिज स्टॉक, देन दैट प्रीमियम विच इज पेड फॉर इट दैट इज अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज केटल. सो काफी बार क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसका काम ही यही होता है, जैसे आपका जैसे फेडरल मिल्क सोसाइटी हो गई या जो भी है, जिसका काम ही यही है कि वो केटल को यूज करके कुछ भी प्रोडक्ट निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं, चाहे शीप से उनका वूल निकालें. ऐसा अगर कुछ भी है, जब उसको पता है कि एनिमल्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन माय बिजनेस और एनिमल्स को उसने इंश्योर्ड किया है, तो जो भी प्रीमियम वो पे कर रहा है वो भी डिडक्शन मिलेगा. Then health of employees. Okay, so for businesses, employees are very integral part, right? They are the ones who actually make the objectives of the organizations achievable. So they are very integral. So in case the organization is ensuring the health of the employees, then also the premium paid will be allowed as a deduction. But there is one point to be noted here, that the premium should be paid in any mode apart from cash. ठीक है, कैश में नहीं होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा. सो जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज, वो प्रीमियम आपका डिडक्शन मिलेगा. Then and other one, it is to be insured either by the general insurance company or any insurance provider which is approved by insurance regulatory authority of India. ठीक है. सो अगर मोस्टली ऑफ देम आर अप्रूव्ड ओनली, सो आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई केस नहीं आएगा. बट हाँ, अगर इंश्योरेंस हेल्थ अगर हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज को अगर इंश्योर किया गया है तो प्रीमियम अलाउड है. Then payment of key man insurance policy premium for a partner of a firm, director of a firm and other key personnel. तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है और उन्होंने अपने मेन की पर्सोनल्स को अगर इंश्योर्ड किया है, सो उस केस में भी जो भी प्रीमियम पे हो रहा है दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इंश्योरेंस. देन नेक्स्ट इज बोनस एंड कमीशंस पेड टू द एम्प्लॉइज. So this particular bonus and commission, this sum is allowed as a deduction if it would not have been paid as dividends or profit. So sometimes what the organizations do, they distribute dividends irrespective of bonus or commissions, what they allot them the equity shares of the company and then they distribute dividends, or sometimes they also give some share of profit. So in that particular case, अगर ये मिल रहा है तो फिर बोनस कमीशन डिडक्शन नहीं मिलेगा. बट अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो जो भी बोनस और कमीशन एम्प्लॉइज को पे किया जा रहा है दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शंस. ठीक है. बट इंसेंटिव्स आर नॉट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर case. Although these incentives can be claimed as a deduction under the section 37 which is talking about general deductions. ठीक है. जनरल डिडक्शंस हमने थोड़ी बहुत करी भी और अभी हम नीचे जाके भी और करेंगे 37 में, वहां पे मिल जाएगा. बट this particular discussion which we are having, this is particular to section 36 only. ठीक है. सो उसमें बोनस एंड कमीशंस हैं जो डिडक्शंस मिलेंगी, जिसमें ओनली इफ द एम्प्लॉइज आर नॉट बीइंग पेड डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स. ठीक है. Bonus or commission allowed as deduction only when payment is made during the previous year or on or before the due date of furnishing return of income under section 139. ठीक है. सो जो भी प्रीवियस ईयर जब खत्म होता है 31 मार्च को, उससे पहले पहले पे हो जाना चाहिए. और अगर नहीं हुआ है तो जब रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमने अभी तक रिटर्न थ्योरी हमने डिस्कस नहीं करी है, बट अभी तक यही हुआ है कि इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई होता है एंड इट कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग. ठीक है. जैसे अब भी एक्सटेंड हो रखी है, सो इट कीप्स ऑन एक्सटेंडेड. ऑल्दो इन द इनकम टैक्स एक्ट इट इज रिटन दैट द ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल्स इज 31 जुलाई. ठीक है. सो उससे पहले पहले तक एटलीस्ट द असेसी शुड हैव इट्स नॉट फॉर द कंपनीज के लिए डिफरेंट ड्यू डेट होती है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी मैंने सिर्फ इंडिविजुअल्स का बताया. सो जो भी ड्यू डेट होगी फॉर द कंपनीज और फॉर द प्रोफेशनल पीपल, उनसे पहले पहले दे हैव टू पे. Then interest on borrowed capital. ठीक है. So in case the business or the profession, if they have taken any kind of borrowed capital or loan from the third party, so जो भी वो interest दे रहे हैं, it is allowed as deduction but only on payment basis. That is only on cash basis. ठीक है. So
in case if it is not being paid, you cannot claim this as a deduction. मतलब accrual basis पे नहीं है, it is only on the basis of cash basis. And also if the interest is borrowed for acquisition of an asset, then the interest paid in between the date of borrowing the asset and the date of putting the asset to use will not be allowed as deduction. ठीक है, so वो जो duration होता है ना कि जब से एसेट लिया और जब तक आपने उसको एक्चुअल में बिजनेस में यूज करने के लिए पुट किया, ठीक है, वो ड्यूरेशन का इंटरेस्ट यू कैन नॉट क्लेम एज डिडक्शन. ठीक है, वही डिडक्शन मिलेगा बस जब से आपका असेट एक्चुअल में यूज होना शुरू हुआ है, और जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस लोन के ऊपर जिससे आपने इस पर्टिकुलर असेट को खरीदा है, वो तब से ही शुरू होगा जब वो पुट होगा. ठीक है. Then discount on zero coupon bonds. So you must be knowing what are zero coupon bonds. The bonds which do not have any coupon attached to it. It's just the issuing price and the redemption price, and whatever the difference between issue and redemption, it is basically actually called as the interest. ठीक है, इसमें कोई कूपन नहीं अटैच्ड होता. सो इस केस में अगर कंपनी कोई भी डिस्काउंट दे रही है, जो इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है, द डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट कैन बी अलाउड एज डिडक्शन बट ओनली एज अ अमोर्टाइज्ड वैल्यू. अमोर्टाइज्ड वैल्यू क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का आपका जीरो कूपन का बॉन्ड है, तो जो भी डिस्काउंट है, फॉर एग्जांपल 10,000 डिवाइड बाय 10, सो 1,000 एवरी ईयर यू कैन क्लेम एज डिडक्शन. ठीक है, अमोर्टाइज्ड हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड. ऐसा नहीं होगा कि पहले ही साल में सारा का सारा जो डिस्काउंट आपने दिया था वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा. इट विल बी एन अमोर्टाइज्ड वैल्यू. देन employer's contribution to a recognized provident fund or a superannuation fund. Now recall the chapter of salary. ठीक है, salary में everything was done in respect to the employee, right? कि employee contribute करता है तो उसको deduction मिल जाएगा ATC में. अगर employer contribute करता है तो somewhere it is exempted, somewhere it is directly chargeable to tax, right? If you can recall the chapter of salary. यहाँ पे एवरीथिंग इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर. ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस की बात हो रही है, एक एम्प्लॉयर है. अब जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए जो जो करता है वो क्या क्या डिडक्शन मिलता है. ठीक है, सो अब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अ सुपरएनुएशन फंड, then it is allowed as a deduction but on payment basis only. That is on the basis of cash only, not on the basis of accrual. ठीक है, सो जब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या सुपरएनुएशन फंड में अपने एम्प्लॉयज के लिए, इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, क्योंकि ये एम्प्लॉयर एक खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयज के लिए, सो ये डेफिनेटली एक एक्सपेंस है जो कि रिड्यूस होना चाहिए उसकी इनकम में से. देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड. ठीक है, सो इफ the employer is contributing anything in respect of pension fund under section 80CCD, then this particular amount is also available as a deduction but to the extent of 10% of the salary of the employee. ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में 10% of the salary of employee ही करता है. दिस इज बाय द रूल ऑफ लॉ. वहां पे सैलरी में भी हमने 10% एंड 12% किया था. सो ये है ही कि वो 10% तक ही करते हैं. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. सो यही जो 10% ऑफ द सैलरी है, विच इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस बट एक्सक्लूड्स ऑल अदर काइंड ऑफ परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस, जो भी होगा बस 10% ही अलाउड है. ठीक है, जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बोला है वही है. उसके बाद अब चाहे एम्प्लॉयर मर्जी है उसकी, वो कितना भी खर्चा करता रहे, बट गवर्नमेंट कहती है हम 10% तक का ही आपको डिडक्शन देंगे, आप अपनी इनकम में से पीएनएल में इसको डेबिट कर सकते हो. ठीक है. Then employer's contribution to an approved gratuity fund. So in case any kind of gratuity amount, if the employer is has to give in the future, and for that purpose he is also creating an approved gratuity fund, then whatever contribution he is making to that particular fund, that will be allowed as a deduction. ठीक है, जो भी वो contribution कर रहा है उस gratuity fund में, approved gratuity fund में, it will be allowed as a deduction but it should also be on the payment basis. ठीक है, it should not be on accrual basis. cash basis पे contribute करेगा तो मिलेगा. Then employees contribution towards staff welfare scheme.
सो इसमें देखो क्या है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझो, काफी बार क्या होता है, सर्टेन एम्प्लॉयज डिडक्ट्स द अमाउंट्स फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स सर्टेन वेलफेयर स्कीम्स लाइक पीएफ, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एटसेट्रा। सो क्या करता है, एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है एम्प्लॉयज की सैलरी में से, और उसके बाद वो डिपॉजिट करता है इन सारे, जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी वेलफेयर स्कीम के लिए उसने अमाउंट डिडक्ट किया है, जैसे पीएफ के लिए किया है तो फिर वो पीएफ वालों को डिपॉजिट कराता है, ईएसआई वालों के लिए किया है तो ईएसआई वालों में कराता है। सो जो भी वो डिडक्ट कर रहा है, नाउ जस्ट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉयर, उसने क्या किया है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए सैलरीज में से कुछ कुछ अमाउंट एम्प्लॉयज का डिडक्ट किया है कि ये आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन है या आपका ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है। अब जब तक वो एम्प्लॉयर उसको एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं करा देता है, उस ड्यूरेशन के लिए इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। उसने क्या किया है, उसने सैलरी में से डिडक्ट किया है ना अमाउंट, ठीक है। सो उसने अगर डिडक्ट किया है, जब तक उसके अकाउंट में वो एक्चुअल में डिपॉजिट होना चाहिए था बट अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो उसके अकाउंट में, जितने भी ड्यूरेशन के लिए उसके अकाउंट में, इट इज कंसिडर्ड एज हिज इनकम। बट एज सून एज ही डिपॉजिट the same to the provident fund and superannuation fund, then it is not an income. ठीक है, then it will be allowed as a deduction. ठीक है, सो जब तक जिस ड्यूरेशन के लिए उसके पास पैसा है वो उसकी इनकम है, बट एज सून एज ही डिपॉजिट द अमाउंट, या तो बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर या फिर बिफोर द डेट ऑफ द आईटीआर, अगर वो कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल में पे कर देता है टू दोज वेलफेयर यू नो द एसोसिएशंस व्हिच आर एक्चुअली मैनेजिंग दीज स्कीम्स, सो डिडक्शन मिल जाएगा। देन राइट ऑफ यूजलेस और डेड एनिमल्स। सो इन केस किसी का यू नो यही सपोज फेडरल मिल्क सोसाइटी है और उसका काम ही यही है मिल्क बेचना, सो उसका कैटल है, काउस का, बफेलोस का, और इन केस कोई एनिमल मर जाता है, ठीक है, सो उस केस में जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द एनिमल एंड नाउ द अमाउंट व्हिच इज रियलाइज्ड ऑन सेल, मतलब मरने के बाद भी समटाइम्स यू नो माइट बी सम पार्ट कैन बी यूज्ड, सो उसकी कोई रीसेल वैल्यू होती होगी उन डेड एनिमल्स की। सो जो भी वो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज यू नो द डिडक्शन। जो भी डिफरेंस होगा that will be allowed as a deduction in the P&L account, क्योंकि जो एनिमल मर गया, जैसे फॉर एग्जांपल उसने लाख का खरीदा था लेकिन उसको सिर्फ 5,000 उसकी रीसेल वैल्यू हुई है, सो जो 95,000 का है इट इज बेसिकली अ लॉस, एंड दैट लॉस दे कैन राइट ऑफ इन देयर P&L account, so it is allowed as deduction. Then bad debts written off. This amount can be claimed if the bad debt is actually incidental to the business and should have been taken into account while computing the income. It should be related to those incomes which are actually credited to the P&L account. ठीक है, जो इनकम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी यू नो सेल्स हो रही है, ठीक है, जैसे सपोज उसका बिजनेस था सिल्क का, और सिल्क सेल हो रही है, उसी से रिगार्डिंग डेटर्स हैं और डेटर्स ने अभी अमाउंट पे नहीं किया और कुछ कुछ डेटर्स बैड डेट्स हो रहे हैं। सो नाउ सिंस द सेल्स इज क्रेडिटेड, ठीक है, इन हिज P&L account, that is why the bad debts of the you know are allowed to be debited because it's directly relate to the business है उसका सिल्क का, और उससे रिगार्डिंग जो भी डेटर्स थे कुछ कुछ जिन्होंने पे नहीं किया वो बैड डेट्स हो गए, तो इट इज अलाउड टू बी डेबिटेड। बट देयर इज अ कैच हियर दैट अगर जो भी बिजनेसमैन है अगर वो प्रोविजंस फॉर बैड डेट कर रहा है तो वो प्रोविजंस डेबिट नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ बैड डेट्स अलाउड है, बैड डेट्स को आप राइट ऑफ कर सकते हो बट आप प्रोविजंस को नहीं करोगे राइट ऑफ। ये सारा आपका आईटी एक्ट है, just don't mix it with your accounts, just keep a clarity that on which basis the IT Act is actually allowing some expense and not allowing the other expense, just understand the reasoning behind it. So provisions इसलिए basically allowed नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक कुछ actual हुआ नहीं है, the company is only preventing, ठीक है, कि फ्यूचर में बैड डेट्स ना हो इसलिए हम अभी से प्रोविजंस कर रहे हैं, बट इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि जो इनकम है उस पर टैक्स दो ना, अब तुम कितने भी प्रोविजंस बना लोगे हमें क्या लेना देना, ठीक है, हम थोड़ी आपको कह रहे हैं कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखो, ठीक है ना, वो तो आपकी अकाउंट्स कहती है
क्या प्रोविजंस बनाओ? हम थोड़ी कहते हैं प्रोविजंस बनाओ, हमें तो जो आपकी इनकम है और जो आपको लॉस हुआ है वो सब्ट्रैक्ट करके हमें तो उस पर टैक्स दे दो, हमें प्रोविजंस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। बट जो आईटी एक्ट है उसने भी अलाउ किया है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोविजंस अलाउ करें उनको कि उनके प्रोविजंस हम दे देंगे, बिकॉज इट इज वेरी मच इंसिडेंटल, बिकॉज दे हैव देयर मेन the main business of these banks and financial institutes is to give the loans to the the account holders. ठीक है, so इनका एक मेन काम होता है लोन देना. So यहाँ पे the chances of bad debts is very very high as compared to normal businessmen or the partnership firms or the companies. So here, since the risk is very high, the IT Act has allowed the deductions for provisions, but they have capped the amount. There are some maximum limits which are there. Us basis pe they are saying that it is allowed. जैसे scheduled banks other than foreign bank or non-scheduled banks and cooperative banks, उसके लिए जो provisions बना सकते हैं वो 8.5% of gross total income इतना अलाउड है. ठीक है, या फिर जो भी आपके एग्रीगेट हैं, जितने भी आपने एडवांसेस दिए हैं, अगर कोई रूरल ब्रांच है आपकी, जितना भी आपने एडवांसेस दिया है रूरल ब्रांच में उसका 10%. ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है स्केड्यूल बैंक्स की. नॉर्मल में 8.5% और रूरल ब्रांचेस के लिए इट इज 10%. अगर कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके लिए इट्स 5%. और फॉरेन बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके लिए भी 5%. ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, दिस इज ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज. मैं जो भी आज करा रही हूँ दिस इज मोस्टली थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल. मतलब जो अभी तक एक्सपेंसेस कराए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपके, बट जो जो स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ नहीं आएंगे वो नहीं आते. ठीक है, सो ये आपका सिर्फ प्रोविजंस का ही कंसेप्ट है कि खाली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए इट इज अलाउड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ नॉर्मल बिजनेसमैन इज क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोविजन and if he has debited that particular thing in P&L account, then it should be click in your mind that it is not allowed. So you have to add it back. It is basically the expenses which are debited but not allowed to be debited in Income Tax Act. ठीक है, सो जो अभी जो भी मैं चीजें करा रही हूँ ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि जब आप पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या अलाउड है क्या नहीं है. और अगर उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट्स अ it's a financial institution or it's a bank, तब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ओके इस केस में प्रोविजंस आर अलाउड. बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज वहां पे यू हैव टू चेक दीज मैक्सिमम लिमिट्स आल्सो. तो अभी तक कभी आया नहीं है. Then recovery of bad debts. So definitely if bad debts are allowed as a deduction, then in case any recovery happen in the future, then it should be credited in the year of recovery. ठीक है, it's a very normal thing कि अगर रिकवरी होगी तो इट्स योर इनकम. Then one important point to be noted here is that the bad debts recovered are taxable for the person who suffers the bad debts and not the person who actually recovered such bad debts. It was decided by the Supreme Court in the case of Commissioner of Income Tax versus P.K. Kamal. जो भी Kamal, I don't know कैसे pronounce करते हैं. सो ये बेसिकली डिसाइड हुआ था कि जिसने एक्चुअल में सफर किया है, जिसने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम करी है, उसी की इनकम में ये ऐड होना चाहिए, ना कि जो रिकवर कर रहा है. इसका मतलब अगर कोई ओनर है और सपोज ही हैज नाउ रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, सो उसके बाद अगर कोई न्यू मेंबर आया है, कोई न्यू पार्टनर आया है, तो उसके लिए इट शुड नॉट बी टैक्सेबल. It should be taxable for the earlier member only who already has retired, but since he was the one who has suffered that particular bad debt and he has claimed the deduction, so it should be taxable to him, not to the person who actually received it. But इसमें क्या होता है, पार्टनर्स वाले केस में आई थिंक आई हैव टेकन अ रॉन्ग एग्जांपल, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए हो रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म इज द एक्चुअल वन हु हैज एक्चुअली क्लेम्ड द डिडक्शन, नॉट द पार्टनर. अगर कोई इंडिविजुअल के केस में हो रहा है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, तो उस केस में ये वैलिड होता है कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर था और उसकी इनकम में इट वाज एडेड, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, दोनों को मिक्स कर सकते हैं, राइट. उसके केस में द बिजनेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द ओनर. उस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई न्यू ओनर बन गया, उसने उसकी
सोल प्रोप्राइटरशिप खरीद ली है, तो उस न्यू ओनर के लिए इट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल फॉर द अर्लियर ओनर ओनली. ठीक है. देन आफ्टर रिकवरी, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व्स. ठीक है. सो काफी बार क्या होता है, एंटिटीज अपने स्पेशल रिजर्व्स बनाती है. इट इज फॉर सम स्पेशल पर्पसेस. So it is usually created by like banking or financial institutions, and they transfer it to the reserves and they claim it as a deduction. But there are some maximum capping limits which are given by the Income Tax Act. So वो क्या maximum है आपकी? 20% of profit from the eligible business, जो भी आपका business है उसका 20%. ठीक है. 2 times of, आपको अपनी पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व को पहले ऐड करना है, उसका 2 times लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस अगर कोई भी स्पेशल रिजर्व जो हमारा प्रीवियस ईयर था उसकी फर्स्ट डे पे कोई बैलेंस था, फॉर एग्जांपल 2 lakhs का था, ऑलरेडी था ओपनिंग बैलेंस उस स्पेशल रिजर्व का, उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. सो दोनों अमाउंट आपको कैलकुलेट करने हैं और उससे देखना है कि आप दोनों में से बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों से वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द 2 मैक्सिमम लिमिट्स. ना तो वो एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट्स के 20% से ज्यादा होना चाहिए, ना ही पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व जो भी है उसके 2 times मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी स्पेशल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था उसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी अमाउंट आ रहा है उससे. और जो एलिजिबल बिजनेस है फॉर दिस पर्पस, इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज. सो जो भी फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, जो ये सब जिनके ये बिजनेसेस होते हैं, सिर्फ वही एलिजिबल हैं स्पेशल रिजर्व्स की डिडक्शन लेने के लिए, जिनका एक मैक्सिमम कैपिंग है. और इन केस ये स्पेशल रिजर्व्स जब भी विड्रॉ होंगे, कोई भी अमाउंट इसमें से विड्रॉ होगा उसी प्रीवियस ईयर में, इट विल बी credited in the P&L account. ठीक है. It will be taxable for that particular owner. So आपके special reserves क्या मतलब अगर होगा तो you have to check these things. Next is family planning expenditure. So sometimes what the companies do, they in order to promote the family planning amongst their employees, they spend some amount on these kind of things. So jo bhi amount they are spending, it will be allowed as a deduction in the year in which it is actually incurred. But whatever expenditure they are incurring, only 1/5 of such expenditure will be allowed as a deduction, and the balance will be allowed as a deduction in the subsequent years. ठीक है. So जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है फैमिली प्लानिंग पे, उसका सिर्फ 1/5 मतलब आप इक्वल अमाउंट्स में उसको हर साल उसको डिडक्ट करोगे, but it will start from the year in which the expenditure has actually incurred, and it will continue for the next 4 subsequent years. For example, आपकी जो भी कंपनी थी उसकी बिजनेस इनकम थी 6 lakhs और उसने फैमिली इनकम 2 lakhs उसने खर्चा किया. Sorry, I think I've made a wrong statement here. Revenue expenditures पूरे allowed है, capital जो expenditures हैं वही 1/5 allowed है. ठीक है. नॉट जो कैपिटल नेचर के है ना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, अभी आगे जाके वो भी डिस्कस होगा आपका. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है खाली उनको आपको पूरा का पूरा एक साथ क्लेम नहीं करना है, उसका आप 1/5 पोर्शन करोगे क्लेम. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस इनकम है 6 lakhs और आपने फैमिली प्लानिंग पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लाख है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 लाख है, तो ये दो तो पूरा का पूरा उसी साल हो जाएगा, बिकॉज इट्स रेवेन्यू इन नेचर. इट्स इट्स कैपिटल होता है एंड रेवेन्यू ही होता है ना, नॉट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. यस ठीक है. सॉरी मैम, रेवेन्यू होता है. हाँ, मैं एकदम से ना पता नहीं कंफ्यूज हो गई, रेवेन्यू से एकदम मेरे दिमाग में ना सेल्स आ गया. नहीं, रेवेन्यू ही होता है. सो वो पूरा अलाउड हो गया, लेकिन जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 1/5, तो 1/5 कितना हुआ 1 लाख. सो 1 लाख तो आपका इसी साल हो गया और बाकी जो बचे हुए आपके 4 लाख है वो एक लाख आपका सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में आपको अलाउ हो जाएगा डिडक्शन. ठीक है. दिस इज फॉर फैमिली प्लान. नाउ सम important note points here. No deduction is available in case of non-corporate assessee.
ठीक है. सो ये सिर्फ अभी जो हमने प्रोविजंस अभी तक डिस्कस करे हैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग, इट इज ओनली फॉर द कॉर्पोरेट. इट मीन्स द कंपनीज ओनली, not the partnership firms or the sole proprietor. It's not for them, it's only for the corporate. Although they can also claim the deduction, but not under section 36, under section 32 and 37 if the relevant conditions are satisfied. Okay, there are some conditions. Let's see if there are these things are mentioned in your courses, तो आपके notes में मिल जाएगा. Otherwise, just don't pay any special attention. आपके पीजीबीपी में कॉर्पोरेट के क्वेश्चंस ही आएंगे, कॉर्पोरेट एसएससी के, या फिर आपके पार्टनरशिप फॉर्म्स के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म भी आता है और कॉर्पोरेट्स भी आते हैं. तो देखते हैं अभी क्वेश्चन अगर आएगा तो. And any family planning expenditure which is not allowed as deduction due to inadequacy of profit shall be set off and carry forward as if it is unabsorbed depreciation. So अभी ना एक आपकी प्रॉपर एक चैप्टर आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. क्या होता है, काफी बार लॉसेस इतने ज्यादा होते हैं कि आप एक साल में उनको क्लेम नहीं कर पाते हो, तो आप उसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उस साल आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो प्रॉफिट से. तो एक अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन करके भी कंसेप्ट होता है कि डेप्रिसिएशन यूजुअली इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिस साल आपके प्रॉफिट्स होंगे उस साल आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो. तो सेम रूल चलेगा. ठीक है, सो ये जो भी रूल्स वगैरह ये आपके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में करेंगे. वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है आपके, 2-2 3-3 लेक्चर्स के, तो वो उस टाइम पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. Then any expenses which are not capital in nature and is incurred by the corporation or a body corporate which is established by the central or the state act or notified in the official gazette, that will be allowed as a deduction. So not important, just leave it. Amount of banking cash transaction tax paid by the assessee on taxable banking transactions. So जो भी आपने banking cash transaction tax दिया, that is allowed as a deduction. Any type of contribution to credit guarantee fund trust of small scale industries by public financial institutions, it is allowed. It is also not very important. सिर्फ terms देख लेना. ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन टैक्स या क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है. देन अमाउंट पेड एज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐसे आ सकते हैं. On taxable security transactions and the income relating to this tax should have been included as business income. These transactions must be entered into the course of business. This means that the dealers in stock market and the businesses who undertakes trading are eligible for this deduction. So जिसका काम ही यही है कि वो securities में deal करता है. It is a normal course of their business. और उस regarding वो trading से regarding if they have to pay any kind of securities transaction tax, then it will be allowed as a deduction. Why? Because this is their work, this is their normal course, this is their normal routine of work, and whatever income they are generating, they are also crediting the same to their the profit and loss account. So credit हो रहा है अगर कोई income, so उससे regarding जो expenses है वो हम usually allowed होते हैं as a deduction. तो जिसका काम ही यही है, जिसका रेवेन्यू यही होता है, तो उसके लिए जो भी वो टैक्स पे कर रहा है उस चीज से रिगार्डिंग इट इज अलाउड एज डिडक्शन. Then amount paid as commodity transaction tax on taxable commodity transactions and the income relating to this tax should have been included as business income, and these transactions must be entered in the course of business, and this deduction is only for the commodity brokers and dealers. So जो commodities में या उनके derivatives में जो भी उनका काम ही यही होता है, जिन brokers का dealers का जो trade करते हैं, so वो जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो क्रेडिट साइड जाती है, और जो भी वो टैक्स पे करते हैं उससे रिगार्डिंग वो उसके डेबिट साइड में जाएगा. इट्स अ डिडक्शन व्हिच इज अलाउड. Then amount of expenditure incurred by a cooperative society manufacturing sugar in purchasing sugar cane when the price paid is less than or equals to the price fixed by the government. So कोई भी ऐसा expenditure अगर cooperative societies जो शुगर में बेसिकली या शुगर केन में जो डील करती हैं, अगर जो भी वो व्हेन जो प्राइस वो पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया उससे कम है, जो भी उनका खर्चा लग रहा है, इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. ठीक है. देन मार्क टू मार्केट लॉसेस और अदर लॉसेस. सो दिस इज यूजुअली क्या होता है, market prices evaluate होते हैं, and it's not merely a market transaction, it is an accounting transaction. मतलब आप
रिकॉर्ड करे जा रहे हो, आप डेली बेसिस पे मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करे जा रहे हो, जो भी आपको डिफरेंसेस आ रहा है दैट इज बेसिकली अ विच यू नो समटाइम्स इट्स प्रॉफिट, समटाइम इट इज लॉसेस। तो अगर लॉस आ रहा है तो जो भी आपका जो अमाउंट आ रहा है दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, जो भी मार्क टू मार्केट, इट्स दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट यूजुअली क्या होता है, जो कंपनीज इन सिक्योरिटीज और कमोडिटीज इन सब में जो डील करती है, बहुत बारी वो ऐसे करते हैं कि वो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस पास करती है रिगार्डिंग on the basis of market value. Sometimes market value keeps on falling, sometimes it keeps on rising. So वो पूरा लिंक करके रखती है जो भी कॉस्ट और जो प्राइस होता है with the with this thing, market value. So जो भी उसमें लॉस होता है, आईटी एक्ट कहता है it is allowed as a deduction. ठीक है, so whatever things we have discussed so far, it is regarding to the deductions which are allowed, expenses which are allowed as a deduction under section 36. Now section 40 talks about the amounts which are not deductible. ठीक है, so ये specific amounts हैं जो allowed ही नहीं है. So that I think we should start in the next class because काफी बड़ा है ये, और I want to complete this at one go only, so that we will discuss in the next class. किसी को कोई doubt है अभी तक तो they can ask.